Wishing you all, especially dear children, a very happy Independence Day 2020. In the dead silence of corona pandemic, COVID-19, we hear the nation's call for a tryst with destiny once again. The call for a true democracy for India and a model for the world, placing the teacher at the center of fundamental reforms in the educational system, recognizing as most essential member of our society to shape the new generation of citizens with a promise to do everything to help to do the job efficiently and effectively. Marching on with a lofty vision, educational goals set, we teachers, with personal example and love for the child, will take the divine mission with all sincerity, ready to make supreme sacrifices needed, making children and their future our priority in our lives, with the same love the parents show to their children. History is but biographies of great men. Among the yesteryear's saintly patriots, I chose for the occasion Mahatma Gandhi and Mahadeva Desai, who are considered one soul with two bodies. The Gospel of Selfless Action, or the Gita according to Gandhi, of Mahadeva Desai's book. We can derive great lessons from Gandhiji's life, how to transfuse the holy scriptures of all religions into our daily lives with equal importance. Quoting from the Sri Bhagavad Gita, the last sloka 78 of the last chapter, wheresoever Krishna, the master of yoga, is, wheresoever is Partha, the bowman, their rest assured are fortune, victory, prosperity, and eternal right. Mahadeva Desai writes, I quote, in one of the speeches of lofty eloquence during the Dandi March of 1930, Gandhiji identified Krishna with the righteousness of the end and Arjuna with the purity of the means and said, I have faith in the righteousness of our cause and the purity of our weapons. Where the means are clear, their God undoubtedly present with his blessings, and where the two combine, their defeat is impossibility. I unquote. Today we promise the nation that we will make the student-teacher bond a sacred bond of love to bring back the past glory for India. Jai Hind.
सत्याग्रह की प्रक्रिया, जो झगड़ा करने के लिए जाता है उसको दोस्त बनाने की प्रक्रिया होती है। जो झगड़ा करने के लिए जाता है वो दोस्त बनता है। ये मेरा पहला, किस उम्र का था वो उम्र याद नहीं है, उस उम्र का अनुभव है कि गया तो था बाहें कसकर, लेकिन दोस्त बनकर लौटा। मुख्य बात जो मैं बताना चाहता हूँ ये था कि सत्याग्रह दुश्मन को दोस्त बनाने की प्रक्रिया है। ये चीज बहुत बचपन में संस्कार के रूप में मिली थी। गांधी को सत्याग्रह तक वहां जो पहुंचना पड़ा वो एक लंबी प्रक्रिया का अंत था, क्योंकि विधि पूर्वक जो भी काम हो सकते थे, भारत के दक्षिण अफ्रीका वासी, भारतीय लोग उनकी दिक्कतों को, उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो वो काम कर सकते थे उनमें से बहुत सारे काम वो कर चुके थे। अखबारों को चिट्ठियाँ लिखी थी, उससे जब समाधान नहीं हुआ तो उन्होंने फिर अपना अखबार शुरू किया, इंडियन ओपिनियन नाम का, और उस अखबार में रोज रोज या हर सप्ताह में लिखने लग गए। उससे काम नहीं हुआ तो एमएलए लोगों से मिलने के लिए गए, एमपी लोगों से मिलने के लिए गए, उनके लिए पत्रिकाएं निकाली, वो पत्रिकाएं बांटी, उनको भी दी और लोगों को भी दी। भारत में भी कुछ प्रतियां भेजी, इंग्लैंड में भी प्रतियां भेजी। जो प्रक्रियाएं हो सकती थी संवैधानिक तरीके की, वो सब कर चुके थे और देखा था कि आगे अंधी गली आती थी, होता नहीं था, आगे बढ़ता नहीं था। तो संवैधानिक प्रक्रिया जब रुक जाती थी तो गांधी ने सोचा कि अब उपाय अगर हो तो कुछ न कुछ एक्शन लेने का है, अब हमको कुछ न कुछ कार्रवाई करनी होगी। तो सत्याग्रह का विचार इस कार्रवाई में से शुरू हुआ। विचार तो काफी लंबा है और उसकी थोड़ी बात भी हम लोग करने वाले हैं, लेकिन उनके मन में ये था कि ये जो कार्रवाई करता है उस कार्रवाई के आगे दो शर्तें हैं। तो साधक की या सत्याग्रही की तैयारी ये एक शर्त, और साधन की शुद्धि ये दूसरी शर्त। ये दोनों शर्तों के बिना सत्याग्रह नहीं होता। ये गांधी के मन में काफी दिनों से उसका विचार बढ़ रहा था। साधन की तैयारियां उनकी अपनी तो चलती थी, उसमें से एक तैयारी तो जब उन्होंने सत्याग्रह शब्द बोला भी नहीं था तब से अनुभव कर लिया था। पहला वर्ष केस के मामले में प्रिटोरिया में उनको बिताना पड़ा था। आदत तो थी रोज सुबह घूमने जाने की, तो अलग अलग दिन अलग अलग रास्ते से जाते थे। एक दिन वहाँ के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट क्रूगर, उनका जो राजमहल था, अब ये राजमहल शब्द बड़ा है, जयपुर के बहुत सारे मकान उस महल से बड़े, इसलिए वो मकान जो है वो उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन वो उनका राष्ट्रपति भवन और उसके सामने एक सड़क है जिसका नाम है प्रेसिडेंट क्रूगर स्ट्रीट। बाद में वही नाम बन गया है राष्ट्रपति क्रूगर स्ट्रीट, वो उनका पथ। तो उस दिन वो घूमते हुए उस रास्ते से चले गए और अचानक पीछे से किसी ने आकर उनको धक्का दिया तो गिर पड़े। तुमको पता नहीं है, काले आदमी को फुटपाथ पर चलने का अधिकार नहीं है। काला आदमी दक्षिण अफ्रीका में फुटपाथ पर नहीं चल सकता था, सड़क के ऊपर उसको चलना है तो वो फुटपाथ पर नहीं चल सकता। तुमको इतना भी पता नहीं है। इतना ही नहीं, उसके बाद वो कुछ लातें लगाने लग गया
तुमको ये भी नहीं मालूम है कि ये राष्ट्रपति के भवन के सामने का ये सड़क है, इस स्ट्रेट पर तुम अब ये कानून का भंग कर रहे हो। उसी समय उनके एक अंग्रेज मित्र सामने से आ रहे थे, उन्होंने ये दृश्य देखा और वो वहां से चिल्लाए, गांधी मैंने देखा है, मैं साक्षी हूं, तुम इस पर जरूर केस करना, उसने तुमको बिना कुछ भी कहे धक्का देकर गिराया है, मैं साक्षी रहूंगा। वो ये जानते थे कि कोर्ट में अगर जाएंगे और काले आदमी ने कोई शिकायत की और कोई काला आदमी उसका साक्षी बनेगा तो कुछ उसमें से निकलने वाला नहीं था, लेकिन वो बोलने वाला गोरा था, इसलिए कहा मैं तुम्हारा साक्षी बनूंगा, तुम जरूर कहो। तो गांधी ने कहा कि इसके खिलाफ कोर्ट जाना है, उसने तो आपकी जो परंपरा है उस परंपरा को निभाया है। परंपरा यह है कि काले लोग फुटपाथ पर नहीं चलते हैं, और ये तो राष्ट्रपति भवन के सामने की सड़क है, वहां तो नहीं चल सकते। उसने धक्का दे दिया। गलती अगर हो तो जो परंपरा बनाई है उसकी गलती है, जिसने इसका पालन किया वो उसकी क्या गलती। सत्याग्रह का दूसरा सिद्धांत जो कल कहा था, रोग का मूल गहरा था, विरोध था व्यवस्था के खिलाफ, व्यक्ति के खिलाफ विरोध नहीं था। ये दूसरी बात उसमें से निकली। इसलिए उन्होंने कहा मैं तो कोई इसके खिलाफ कोर्ट में जाने के लिए तैयार नहीं हूं। बाद में एक प्रसंग पर जब भारत से आ रहे थे तो उनके ऊपर बाकायदा हमला हुआ था। कहा जाता है कि वो हमला इतना गंभीर था कि बीच में पुलिस सुपरिटेंडेंट की पत्नी अगर आई नहीं होती, मिसेस अलेक्जेंडर, तो शायद उस दिन गांधी जी बचते कि नहीं ये प्रश्न है। लेकिन उनको मार काफ़ी पड़ी थी, खून वून मुंह से निकला था, इतना तो हुआ था। उसके कारण काफ़ी चर्चा हो गई थी। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने भी लिख दिया था कि ये बहुत गलत काम हुआ है, गांधी के ऊपर इस प्रकार से आक्रमण हुआ और उनको सजा होनी चाहिए। गांधी ने क्या कहा था, मेरे पर व्यक्तिगत अगर हमला हो तो उस हमले के लिए मैं किसी के ऊपर केस करने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्षमा वीरस्य भूषणम। इतनी व्यक्तिगत तैयारी तो गांधी की थी, और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन इतनी काफ़ी है। तो उन्होंने सत्याग्रह शुरू करने का सोचा, अलग अलग तरीके हुए। दक्षिण अफ्रीका के कुल 8 वर्ष में 20-21 साल रहे, लेकिन आखिरी 8 वर्षों में 3 बार सत्याग्रह हुए। एक सज्जन है अमेरिकन, बर्नेट ब्रिटन उनका नाम है। उस आदमी ने एक किताब लिखी, गांधी जी 20 साल रहे दक्षिण अफ्रीका में। कुल मिलाकर वो अवधि 21 साल की थी, लेकिन बीच में 1 साल भारत में थे, इसलिए मैं 20 गिन रहा हूँ, और वो भी 2 टुकड़ों में। लेकिन उसमें पहले 5 वर्षों में गांधी जी ने क्या किया, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। ये आदमी जो ब्रिटेन, जिसका नाम था, ब्रिटेन देश का नाम है लेकिन इनका सरनेम था, उनकी उपाधि थी, वो अमेरिका का था। अमेरिका के FBI में गुप्तचर विभाग में नौकरी करता था। चाइना स्पेशलिस्ट था, चीन के प्रश्नों के बारे में विशेष अध्ययन करने वाला आदमी। उसमें से त्यागपत्र दिया था, पढ़ा हुआ था, लेकिन कानून की शिक्षा उसने नहीं ली थी, तो पहले कानून की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका जाकर 10 साल रिसर्च किया। और 10 साल के रिसर्च के बाद गांधी अराइव्स इन साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में गांधी
आ रहे हैं, आए हैं, उसके पहले 5 वर्षों का वर्णन है। सिर्फ 750 पृष्ठ की किताब है। गांधी जी की आत्मकथा में उस काल के बारे में 1.5 पृष्ठ है। आत्मकथा में उसके बारे में सिर्फ 1.5 पृष्ठ है, और इस आदमी ने 750 पृष्ठ की किताब लिखी है कि क्या किया है ये 5 साल। तो वो वहाँ की कोर्टों में गए, कुछ कागज उनको इंग्लैंड की कोर्ट में मिले, वहाँ से भी एकत्रित किए। उन्होंने लिखा है कि गांधी ने तो खुद कुछ नहीं लिखा था, 1.5 पन्ना लिखा है, उसमें तो कुछ नहीं मिला, लेकिन सद्भाग्य में कोर्ट में बहुत सारे कागज थे जिसका मुझे रिसर्च करने का मौका मिला, उसके कारण मैंने जानकारी प्राप्त की। वो जो जानकारी की उसके बारे में हम लोग आपको थोड़ी देर के बाद उसकी बात करने वाले हैं। शुरू के दिनों में उन्होंने जो वकालत की उसके बारे में वो ये ग्रंथ उन्होंने लिखा। लेकिन वो करने के बाद जो स्थिति थी उसमें से सत्याग्रह निकला। पहले हम उस सत्याग्रह की बात करके फिर सत्याग्रह के विशेष प्रसंगों को लेने से पहले वकालत वाली बात को करेंगे। तो 3 बार जो सत्याग्रह हुए, तब तक इंडियन ओपिनियन निकलने लगा था, उसमें वो बराबर उसके बारे में लेख लिखते जाते थे। एक बार उसके पहले और एक बार पहला सत्याग्रह हो जाए, दूसरा सत्याग्रह हो गया, उसके बाद 2 बार गांधी जी स्वयं इंग्लैंड गए थे। तो वो पहली बार गए थे, उस समय उन्होंने इंग्लैंड में कुछ अहिंसक, जिसको वो लोग यहाँ हिंसक नहीं कहते थे, पैसिव कहते थे, जिसमें क्रिया नहीं होती थी, थोड़ीकृत क्रिया भी होती थी, लेकिन फिर भी वो उसे पैसिव कहते थे। पैसिव रेजिस्टेंस के कुछ किस्से देखे थे। तब तक इंग्लैंड में जनतंत्र था, लेकिन ऐसा जनतंत्र था कि आधी जनता को वोट का अधिकार नहीं था। जनतंत्र था, लेकिन स्त्रियों को मताधिकार नहीं था। और स्त्रियों ने इस विषय में आंदोलन छेड़ा था कि स्त्रियों को मताधिकार कैसे मिले, और उस आंदोलन का नाम था पैसिव रेजिस्टेंस। और गांधी ने उसको देखा था, और जब उन्होंने काम शुरू किया तो पहले दूसरे लोगों ने कहा कि गांधी ने भी पैसिव रेजिस्टेंस दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया। इंडियन ओपिनियन के कुछ अंकों में उन्होंने भी लिखा पैसिव रेजिस्टेंस हमारा इस प्रकार का हुआ। लेकिन वो कहते थे पैसिव रेजिस्टेंस शब्द मुझे कुछ पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? ये पैसिव नहीं है, ये एक्टिव है। ये पैसिव नहीं है, ये निष्क्रियता नहीं है, ये तो सक्रिय है। इसमें एक ताकत है। तो लोग पूछते थे कि क्या ताकत? तो उन्होंने कहा था, तब तक शब्द बन गया था, तो वो शब्द की बात मैं कहूँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि एक ताकत है। तो कि फिर आप पैसिव रेजिस्टेंस नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? तो कि मैं सोच रहा हूँ, शब्द मिल नहीं रहा है। इंडियन ओपिनियन ने मैं विज्ञापन दे दिया कि हमारे आंदोलन को समझकर, हमारे आंदोलन को ठीक से व्यक्त कर सके, ऐसा कोई शब्द चाहिए। जो शब्द सुझाएगा उसको इनाम मिलेगा। गांधी जी को ने जिनको इनाम दिया, उन्होंने सुझाया था सदाग्रह, सत्य का आग्रह। उसके लिए शब्द सदाग्रह भी हो सकता है। उन्होंने सदाग्रह, गांधी जी ने कहा मेरे विचार को ये अच्छा व्यक्त करता है, लेकिन सदाग्रह का अच्छा आग्रह ये भी हो सकता है। जरा और पैना शब्द बनना चाहिए, ज़्यादा धारदार शब्द बनना चाहिए। इसलिए सदाग्रह के बदले में सत्याग्रह शब्द हम इस्तेमाल करेंगे। तब से वो सत्याग्रह शब्द चल पड़ा, और जब से शुरू हुआ तब से उन्होंने कहा कि ये ताकत है। तो पूछा कैसी ताकत? तो उसके लिए उन्होंने 3 शब्द इस्तेमाल किए।
सत्याग्रह ये एक तो सत्य की शक्ति की ताकत, दूसरा सत्याग्रह उन्होंने कहा था ट्रूथ फोर्स, दूसरा कहा था लव फोर्स, प्रेम की शक्ति, तीसरा शब्द कहा था सोल फोर्स, आत्मा की शक्ति। ये तीन शब्द सत्याग्रह के लिए, सबसे पहले सत्याग्रह की परिभाषा करने के लिए गांधी जी ने जो इस्तेमाल किए वो ये तीन थे। तीसरी जो ताकत है, जिसको आत्मा की ताकत, जिसका अनुभव गांधी ने बचपन से किया था। कल मैंने बताया था कि जन्म घुट्टी में सत्य, बाकी के गुण एक्वायर्ड, बाद में उनको प्राप्त हुए, सीखे। पहले शिक्षक उनको मिले करमचंद गांधी, उनके पिता, जो बीमारी में लेटे हुए थे। गांधी ने गलती कुछ की थी, माँ से बताया कि भाई मेरी ये गलती हुई है, भाई के सोने के कड़े को काटा गया था। माँ ने कहा कि ये ऐसी गलती है, मेरे पास से कहोगे कि चलेगा नहीं, बापू से कहो, बापू तो बीमार पड़े हुए हैं। तो कहा कि माँ कह रही है तो मैं बापू से कहूँगा। हिम्मत तो नहीं हुई बोल कर कहने की, इसलिए चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में सारा चीज़ कही कि हाँ हमने इस प्रकार से किया है, ये हमारी गलती है, इस बार हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। आप इसके लिए जो कुछ भी सज़ा करेंगे वो सज़ा भी हम सहन करने के लिए तैयार हैं। इतना चिट्ठी देकर भाग नहीं गए, दरवाजे के पास जाकर खड़े रहे, पिताजी क्या कहते हैं, रुके रहे, मन में कांपते थे, जाने क्या करेंगे। दीवान करमचंद गांधी ये काफ़ी कड़े आदमी माने जाते थे, तो बच्चे को इतना मालूम था कि पिताजी जाने डांट भी सकते हैं, जाने अपने को सजा कर सकते हैं, कुछ पता नहीं। खड़े हैं, पिताजी क्या कहते हैं ये देखने के लिए। करमचंद गांधी का पोरबंदर में घर में नाम क्या था, कबा गांधी का। कबा गांधी ने क्या किया, चिट्ठी पढ़ी, उसका वर्णन आत्मकथा में है। वो वर्णन गुजराती भाषा के साहित्य के उत्तम नमूनों में आज भी वो प्रकट किया जाता है साहित्य की दृष्टि से। छोटे छोटे 3-3, 4-4 शब्दों के वाक्य है, और वो शब्द भी बहुत छोटे छोटे, कभी कभी तो 2-2 शब्दों के वाक्य। वर्णन क्या है, पढ़ रहे हैं, उनके आंख में से मोती बिंदु पड़े, बस इतना ही है, मैंने रोए, बोले नहीं हैं, आंख में से अश्रु बिंदु गिरे हैं। चिट्ठी पढ़ी, चिट्ठी को फाड़ दिया और बैठे थे, बीमारी में बैठ नहीं पाते थे, बैठे थे, फिर से लेट गए, एक शब्द भी बोले नहीं। गांधी जी कहते थे, ने लिखा है कि अब मैं समझ रहा हूँ कि वो अहिंसा का सबसे उत्तम प्रयोग था। एक भी शब्द उन्होंने मुझे कहा नहीं था, सिर्फ 2 आंसुओं ने जो कहना था उतना कहा होगा। वो अपना लेट गए थे, लेकिन आत्मा यदि बाप और बेटे में एक है, आत्मा यदि मानव मात्र में एक है, तो एक आत्मा को यदि वेदना होती है तो दूसरी आत्मा को समवेदना होगी ही। इस सिद्धांत को वहाँ गांधी ने सिद्ध होते हुए देखा। हम लोग जब बस में बैठते हैं कभी कभी, और बस के नीचे कभी कहीं कोई कुत्ता आ गया और वो कुत्ता बहुत क्यों क्यों करने लगता है, हम बैठे होते हैं बस के अंदर, लेकिन कई पैसेंजर चिल्लाते, अरे कुत्ते को तुमने देखा नहीं, ड्राइवर को डांटने लगते हैं, कुत्ते का पैर कुचल गया। भाई पैर कुचला तो कुत्ते का है, तुम तो ऊपर बैठे हो, लेकिन उस कुत्ते के पैर के कुचलने से
हमारे हृदय में जो टीस पहुंचती है वो आत्मा की एकता को सिद्ध करने वाली टीस है। वो सोल फोर्स का मतलब वो था कि अगर मैं वेदना स्वेच्छा पूर्वक सहन करूंगा तो मेरी वेदना मैं प्रतिपक्षी तक के हृदय तक को ज़रूर पहुंचाऊंगा। इस विश्वास में से सत्याग्रह पहुंचा।